गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ हैं एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। समर्थ थिएटर ग्रुप is a Delhi-based drama school. Here at Samarth, we believe in holistic development of actors is must. Hence, the training should be multidimensional. And therefore, we are here with the season 1 of our webinar with eminent personalities who will talk on diverse topics. Today, I, Ankit Kumar, on behalf of Samarth Theatre Group, welcome you all in the first season of the webinar. Now, I would like to welcome our speaker of the day, Mr. Ravindra Tripathi. He is a well-known cultural critic, playwright, documentary filmmaker, a senior print and TV journalist, columnist, and editor. He has written 5 plays so far, which are Vivekanand in Chicago, Katha Shivpal Ganj Ki, Rag Virag, Agyat Vyas, and Pehla Satyagrahi. The last play is also performed by NSD Repertory Company. बहुत जल्द हम सबके लिए प्रसन्न जी द्वारा लिखी इंडियन मेथड इन एक्टिंग हिंदी में उपलब्ध होगी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रविंद्र त्रिपाठी सर ने किया है. He was also associate director of the play सोचो जब सब उल्टा हो, directed by प्रसन्ना जी. He co-scripted play खेल मंडली खेल, directed by बंसी कौल. जिन दो नाटकों का मैंने अभी जिक्र किया है, ये दोनों ही नाटक एनएसडी के प्रोडक्शंस हैं. He has directed 2 documentary films based on Tughlaq, directed by Bhanu Bharti for Sahitya Kala Parishad, and Poetry Film Festival of Indian Ocean Countries, organized by Sahitya Academy. He has also scripted very popular news satire shows like Pol Khol for Star News and ABP News. He is a film and theatre arts columnist in famous Hindi newspapers like Jan Satta and Rashtriya Sahara. हिंदी साहित्य में इनकी एक जानी मानी व्यंग्यात्मक किताब है जिसका नाम है मन मोबिलिया गया. साथ ही सर ने एनएसडी के हिंदी जर्नल रंग प्रसंग के 2 सीरीज के एडिटर भी रह चुके हैं. सन 2001 में इन्हें हिंदी एकेडमी द्वारा साहित्यकार सम्मान के अवार्ड से भी नवाजा गया है. We welcome you, sir, in the first season of our webinar. Before sir start with his talk, I would like to request all of you to follow some instructions. First, please keep your mic muted during the presentation. You can switch on your camera if you wish to, but make sure you are sitting in an appropriate frame. You can ask your questions by typing it in the chat box, but try to avoid during the presentation as we will have a Q&A session at the end. As we are in great numbers, so in order to avoid chaos, those questions will be consolidated and asked by me. But at the end, if you feel that your question haven't been asked, then you have an option of raising hand in the application. So do click it. Last, but the most important one, we all are connected through a digital medium. I hope you will understand whose controls are beyond us. So in case of any technical or network error, do keep a check on your WhatsApp group. और डिजिटल तालियों के बीच मैं रविंद्र सर को डिजिटल स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ. We welcome you, sir. Sir, your mic is mute. हेलो, अब सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी सर, काफी अच्छी आवाज आ रही है. हाँ, संदीप और अंकित, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार. मैं शुक्रगुजार हूँ समर्थ थिएटर ग्रुप का और संदीप रावत का, मुझे आप लोगों के बीच में बोलने और भाग लेने का मौका मिला. दरअसल मुझे इस बात की खुशी तो है ही कि मैं आपके बीच अपना दृष्टिकोण साझा करने आया हूँ. इस बात की खुशी ज़्यादा है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला है और जितना आप मुझसे लाभान्वित होंगे, मैं आशा करता हूँ और यही अपेक्षा लेकर के आया हूँ
कि आपसे ज़्यादा मैं लाभान्वित होऊंगा इस कार्यक्रम के बहाने, क्योंकि सवाल होंगे कल, सवालों से भी जवाब देने के क्रम में भी जो जिसको जवाब देना पड़ता है वो सीखता है, या सीखने के लिए वो स्ट्रगल करता है, उसके अंदर भी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मेरे अंदर भी एक प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। भारतीय अभिनेता के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर मैं बोलने के लिए आपके बीच आया हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके अनुभव और दृष्टिकोण में नहीं होगा। आप भी रोज महसूस करते होंगे कि जो भारतीय अभिनेता है, और मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कितने लोग हिंदी भाषी इलाके के हैं, कितने लोग बाहर के हैं, पर मुख्य रूप से मेरी बातचीत ऐसी होगी कि जिसका संबंध सभी तरह के अभिनेताओं से हो, लेकिन हिंदी भाषी इलाके के अभिनेताओं से ज्यादा हो। मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन अगर बीच में आपको कुछ लगे तो आप, मेरा जब वक्तव्य समाप्त हो जाए, जो बहुत लंबा नहीं होगा, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कोई स्पष्टीकरण देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते और समझते होंगे, पर फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर अभिनेता के लिए, चाहे वो भारतीय हो या कहीं और का हो, दो चुनौतियां मुख्य रूप से रहती हैं। अब एक तो उसका तकनीकी पहलू होता है, यानी कि अभिनय क्या है, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कैसे अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, कैसे आप स्क्रिप्ट को एनालिसिस करते हैं, या कैसे आप जो दूसरी संगीत से नाटकीय कलाएं हैं, संगीत है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वालिटी है, चुनौतीपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मैं इस पर तो बातचीत करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं बातचीत करते हुए आपका ध्यान जो भारतीय परिवेश में या भारतीय सामाजिक परिवेश में अभिनेता के सामने जो चुनौतियां हैं, उसकी चर्चा मैं ज़्यादा करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तकनीकी पहलू की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन बस यही है कि उनकी चर्चा कम करूंगा। और इसलिए भी मालूम है कि आप लोग, ज़्यादातर लोग आपसे संदीप रावत जी से जुड़े हुए हैं, उनसे आप प्रशिक्षण लेते, तो बहुत सी बातें तो पता भी होगा। जो खास करके निर्देशकीय पक्ष है, उस पर मुझे उतना उतना ज्ञान भी मुझे उतना नहीं है जितना संदीप जी को या दूसरे अभिनेताओं को, दूसरे निर्देशकों को होता है, या दूसरे कोच जो थिएटर कोच होते हैं हिंदुस्तान में। हालांकि एक्टिंग कोच बहुत कम होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ अभी आया नहीं है, लेकिन कई जगह आ चुका है। तो लेकिन जो भी हैं वो मैं, मेरा ज्ञान तो कोचिंग जो रिलेटेड है या ट्रेनिंग को लेकर के है, उसको लेकर के कई निर्देशकों से कम है, इसलिए उनकी चर्चा मैं प्रसंगवश यदा कदा कर दूंगा, या जब आप बात करेंगे तो। लेकिन मैं मुख्य रूप से जो भारतीय अभिनेताओं के सामने चुनौतियां हैं, या ये कहें कि हिंदी भाषी इलाके के अभिनेताओं के सामने जो चुनौतियां हैं, उनकी चर्चा मैं ज्यादा करूंगा। तो पहले तो ये सब आप भी अनुभव करते होंगे, और युवा वर्ग के लोग इससे कम अनुभव करते होंगे, जो 18-20 साल के लोग हैं या जो दिल्ली निवासी हैं, पर जो इस कार्यक्रम में जूम में दूसरे जगहों से जुड़े हैं, दूरस्थ इलाके से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल वगैरह के, वो जो जिनको स्थानीय कहते हैं, हालांकि कोई जगह तरीके से छोटी, कुल मिलाकर के बात होती है कि थोड़ा सा अलग होता है, कस्बाई परिवेश भी थोड़ा अलग होता है। तो वो जो कस्बाई परिवेश है या ग्रामीण परिवेश है, वहाँ अभिनेताओं या थिएटर रंग जो कर्मी हैं या जो रंगकर्मी हैं, उनकी सामाजिक स्वीकृति का बड़ा संकट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने परिवार की इच्छा
वहाँ दो चीजें होती हैं। एक तो नाटक को वहाँ खास सम्मान नहीं है, नाटक कर्मी को, रंगकर्मी को, यह कहते हुए और सुनते हुए आपको दुख हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं है। जब मैं ये जानता हूँ कि कस्बाई अनुभव में कई तरह की सामाजिक बाध्यताएं हैं थिएटर, हालांकि अब कई जगहों पर रंगकर्म फेस्टिवल हो रहे हैं, लेकिन अमूमन बच्चियों से, लड़के लड़कियों से यह न्यूनतम अपेक्षा की जाती है कि थिएटर से न जुड़े, या जुड़े तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और उनको एक सामाजिक लांछन का शिकार होना पड़ता है। ये एक चुनौती है जिसके कारण वो अपने गांव और शहर को छोड़ करके दिल्ली या जैसे बड़े शहरों में आते हैं। पर सिर्फ यही बात नहीं होती, ये भी बात होती है कि वहाँ तकनीक सिखाने वाले लोग भी नहीं होते। तकनीक, रंगमंच एक तकनीक भी है। कई लोग कह देते हैं कि रंगमंच में टेक्निक नहीं है, रंगमंच टेक्निक ही है, ज्यादातर वह टेक्निक है, क्योंकि शब्द तो लिखा हुआ है, शब्द तो लिखा हुआ रहता है, उसके समझने के लिए तो आपको रंगकर्मी होना जरूरी नहीं है। आप जब कालिदास के नाटक पढ़ते हैं या शेक्सपियर के नाटक पढ़ते हैं, तो उसका बतौर पाठक स्वाद आस्वाद तो आप कहीं भी बैठे ले सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक भावना जन्म लेती है कि आप जो शब्द हैं उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसको अभिव्यक्त ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बोल दिया। ब्रूटस तुम भी, बहुत ही साधारण संवाद है जूलियस सीजर का, एटू ब्रूटे, जिसका हिंदी अनुवाद है ब्रूटस तुम भी। अब इसको आप कैसे बोलेंगे? मैं लंबे संवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, शेक्सपियर में तो बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग हैं, 2-2 2.5 पेज के हैं। इस छोटा सा जो बहुत संवाद है उसको बोलने के लिए भी एक आपको तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। कुमार का एक छोटा सा ही डायलॉग है, के पाँव, उसका कुछ अर्थ इस तरीके से है, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, के पाँव नहीं बोलता है, आखिर वो अभिनेता बोलता है, आखिर वो अमिताभ बच्चन बोलता है, तो उसके पीछे एक साधना रहती है, बहुत छोटे सामान्य सामान्य डायलॉग रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा, शेक्सपियरियन मोनोलॉग जैसे बहुत लंबे लंबे नहीं है, जिनको बोलने में 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लग जाए, तो मुश्किल से 2 सेकंड या 5 सेकंड लगते हैं, पर उसका जो प्रभाव होता है वो आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आप एक प्रशिक्षित रंगकर्मी होते हैं। ये एक चुनौती रहती है तकनीक, पर इसके प्रशिक्षक भी हिंदुस्तान में अच्छे नहीं हैं, बहुत कम अच्छे हैं, जो हैं भी वो बड़े शहरों में हैं, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में हैं। तो एक दूसरा बड़ा कारण ये है, ये एक चुनौती रहती है हमारे समाज में कि एक तो नाटक की ओर न जाए, दूसरा हमारे यहाँ का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, यानी विद्यालयी शिक्षा है, उसमें वैसे तो कोर्स में आ चुका है कि आपको नाटक का रंगकर्म की पढ़ाई करनी है, लेकिन दरअसल न तो वहाँ रंगमंच प्रशिक्षक हैं जो अध्यापक नियुक्त होते हैं, उनको कोई रंगमंच का प्रशिक्षण नहीं होता है, उनको कोई ट्रेंड एक्टर नहीं होते हैं या ट्रेंड थिएटर पर्सन नहीं होते हैं, और नाटक के लिए बजट भी नहीं रहता है। वो स्कूल में भी नहीं रहता है, कॉलेजों में भी नहीं रहता है, और कई जगह विश्वविद्यालयों में भी रहता है, जबकि नाटक डिपार्टमेंट है कुछ जगहों पर कोई बजट नाटक करने का नहीं, तो लोग वहाँ एमए इन थिएटर कर लेते हैं, पर वो एक भी नाटक में ना तो एक्टिंग कर पाते हैं ना निर्देशन कर पाते हैं, तो उसका कोई बजट नहीं होता है। वो एक ही आदमी जो हिंदी का अध्यापक होता है या अंग्रेजी का जो अध्यापक होता है या उर्दू का मान लीजिए या बांग्ला वगैरह में बांग्ला का हो, वही जो नाटक का अध्यापक हो जाता है, वो डायलॉग पढ़ के सुनाता है कि ऐसे बोला जूलियस सीजर ने और ब्रूटस ने बोला, और या मोहन राकेश के आषाढ़ का दिन में कालिदास का एक डायलॉग है,
और उसमें मल्लिका ये बोलती है, लेकिन दरअसल वो थिएट्रिकल डायलॉग क्या है, थिएट्रिकल डायलॉग डिलीवरी क्या है, ये नहीं होता है। तो ये एक चुनौती है बहुत बड़ी, ये टेक्निकल भी है और सोशल भी है, उसका सोशल पहलू भी है। सोशल स्पेस में नहीं आए आप, जब सोशल स्पेस से परिचित, जैसे पेश का आधे अधूरे कर रहे हैं, तो अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कामकाजी महिला जो सावित्री है उसका उसका टेंशन क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा अनुभव समाज का लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं, नाटकों की असंख्य संख्या है। जब आप, मैं तो खिड़की खोल रहा हूँ, और जब भी आप किसी नाटक पर काम करेंगे तो ये आपको अनुभव होगा कि उसको करने के लिए एक सोशल लर्निंग भी जरूरी है, यानी कि नाटक का मूल पाठ को ही जानना जरूरी नहीं है, नाटक के सिलसिले में जो सामाजिक संदर्भ है उसको भी जानना जरूरी है। और इस सामाजिक संदर्भ को जानने के लिए न तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम और न पर नहीं है। और इसीलिए लोग, बहुत सारे लोगों की अपेक्षा होती है कि एनएसडी में आ जाएं, जो कि सही आकांक्षा है अपने आप में, कि एनएसडी ना मिले तो भारतेंदु एकेडमी में चले जाएं, या ना तो उसमें आप साउंड का काम करें, चाहे आप उसमें डिजाइनिंग का काम करें, एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक की समझ जरूरी है, जो कि हमारे व्यापक शिक्षा व्यवस्था में मुहैया नहीं कराई जाती है। जबकि इंग्लैंड वगैरह जैसे देशों में, फ्रांस में, अमेरिका में स्कूली शिक्षा में भी थिएटर एजुकेशन बहुत प्रभावशाली है। तो ये एक जो चुनौती है सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर, ये अभिनेता के लिए चुनौती है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि नुक्ते का प्रयोग, ये अमूमन जिस स्कूल सिस्टम में मैं पढ़ा हूँ वहाँ खुद नुक्ते के प्रति कोई आज़ादी, और आज़ादी में मेरे लिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज में भी जब मैं पढ़ता था, तब आज़ादी और आज़ादी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता था। लेकिन जब आप न्यूएंसेस में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं थिएटर की, तब आपको सीखने की जरूरत पड़ती है, जो स्कूली सिस्टम आपको नहीं बोला सिखाता है, कॉलेज सिस्टम में नहीं सिखाता है। फिर जब आप अमूमन जब थिएटर आता है अभिनेता दिल्ली वगैरह करने नाटक, तो आधे समय रिहर्सल में उसका नुक्ता सीखने पर ही जोर चला जाता है, और जोर और जोर में क्या फर्क है, या आज़ादी में क्या फर्क है, फर्क और फर्क में क्या फर्क है, ये मैं भी गलतियां करता हूँ। मैं सचेत हुआ हूँ, लेकिन अब मैंने वैसे ट्रेनिंग नहीं ली है, तो बोलने में अभी भी मैं भी वैसी ही गलतियां करता हूँ। तो ये अभिनेता को भी जुड़ना पड़ता है, और इसका कारण ये नहीं सकता है, या बात सिखाई नहीं जा सकती है, सिखाई जा सकती है, लेकिन हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति है और हिंदी को लेकर के एक धारणा ऐसी बनाई गई है कि वो बातें सिखाई ही नहीं जाती हैं। न सिर्फ सिखाई नहीं जाती हैं, बल्कि उनके बारे में कुछ बोलना भी गलत माना जाता है, और दूसरी वैचारिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, तो सब आप जानते होंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है हमारे समाज में, जो लोग थिएटर आर्टिस्ट बनते हैं उनके सामने, एक है नुक्कड़ नाटक। और आप में से ज्यादा हैं जो नुक्कड़ नाटक में भाग लिए हो सकते हैं, और नाटक करना चाहते भी होंगे, जिन्होंने नहीं हुआ है करते भी होंगे। और एक तरह से इलाके में द्वार है जहाँ मौका अमूमन जो रंगकर्मी आते हैं उसमें ज्यादातर लोगों को वही मौका मिलता है कि नुक्कड़ नाटक में भाग ले।
वो नुक्कड़ नाटक करने वाला जो है वो अपने आप को थिएटर पर्सन समझने लगता है, जो कि वह है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यह खामी कहाँ है? मेरे हिसाब से जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं जानता हूँ कि बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको भी अच्छा ना लगे तो लेकिन आप उस पर सोचिएगा, क्योंकि जब आप थिएटर ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में जब आप इस बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि नुक्कड़ नाटक करते करते ज़्यादातर लोगों का, और ज़्यादातर में मेरा मतलब है कि 98-99% लोगों का गला खराब हो जाता है। वे ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, वे मध्यम आवाज़ निकालना भूल जाते हैं, क्योंकि 2-3-5 साल नुक्कड़ नाटक करने के बाद उनके गले में वो ताकत नहीं होती है कि कोई चीज मध्यम आवाज की तरह कोई ऐसी बहुत ही कम ऊंचा हो चुका है, जो कि थिएटर में बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस ट्रेनिंग में हिंदुस्तान में है, थोड़ा एनएसडी में है और दूसरी जगह भी होना चाहिए, है दूसरे संस्थानों में भी, लेकिन ये बहुत ही उपेक्षणीय महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा कि पश्चिमी देशों में यह व्यवस्था है, वहाँ भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होते हैं। तो अगर किसी नाटक के फर्स्ट या सेकेंड ईयर के टीचर ने अगर ये कह दिया, जैसे शेक्सपियर का नाटक करना जिसमें हाई पिच चाहिए, बाकी अभी इसका गला इसके लिए, हाँ सर माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। एक्चुअली आप एक बार अपना नेटवर्क अगर देख ले तो क्योंकि काफी बार रुकावट आ रही है, आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है। सो इफ यू कैन जस्ट चेक द नेटवर्क कवरेज तो मेरे फोन में ठीक आ रहा है, हो सकता है मेरे इलाके में कुछ हो। मैं सर काफी लोगों को आ रहा है, अगर यहाँ तो अगर एक बार है। आप लीव करके ज्वाइन अभी कर मेरी लेंगे तो आवाज सुनाई शायद पड़ रही है। बेटर हो जाए। सर काफी ब्रेक हो रही है अभी भी, अगर एक हेलो, बार आप तो एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद कुछ इशू हो। मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। जी हेलो, हाँ सर, बेहतर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जर्मनी में या थिएटर में ऐसे अगर आपको या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को रोल मिला नाटक का, मान लीजिए शेक्सपियर का मिला, जिसमें ऊंची आवाज क्लियर जैसी आवाज और उसका गला अगर तैयार नहीं, तो अगर वॉइस टीचर ने कह दिया कि हमारे थिएटर एक्टिविटी का इतना बड़ा हिस्सा है कि हिंदुस्तान में उसको लेकर के सजगता बहुत कम है। यानी कि ये व्यवस्था तो एनएसडी में भी नहीं, हालांकि वहाँ वॉइस की टीचिंग होती है और अच्छी होती है, उसमें मेहनत होती है, लेकिन वहाँ यह नहीं है कि अगर कोई डायरेक्टर और वॉइस टीचर कह दें कि इसको रोल नहीं आएगा, तो वो निर्देशक के विषयाधिकार में हनन धारणाएं भी हमारे हैं। कई रेगुलेशन थिएटर स्कूल में भी जब अनुभव करते हैं, जो थिएटर स्कूल नहीं है, जो आप ट्रेनिंग बाहर के लोगों से लेते हैं, किसी ग्रुप में शामिल होकर लेते हैं,
वहाँ भी है, वॉइस के प्रति सेंसिटिविटी है, लेकिन उस तरह से नहीं है। और अमूमन लोग वॉइस के प्रति हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो संवेदनशीलता है, ट्रेनिंग कम है। मैं बात कर रहा था नुक्कड़ नाटक के सिलसिले में। तो आवाज और भी खराब हो जाती, क्योंकि लगभग आप जो भी 6 महीना से लेकर 6 साल तक जो आपको अनुभव नहीं होगा, जब आप नाटक कर रहे होते हैं तो लगता है यार कर रहे हैं, ये एक चुनौती है। मैं इसीलिए मैं नुक्कड़ नाटक का पॉलिटिकली समर्थक हूँ, देखने भी जाता हूँ, एक आध जगह निर्णायक भी रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कुछ कॉलेजेस नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता करते हैं, वहां भी मैंने बात कही थी, मैं अभी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, कि आप प्रतियोगिता कर रहे हैं, पर क्या इनमें से कोई लोग अच्छे अभिनेता कभी हो पाएंगे? थिएटर कर लेना, किसी नाटक में भाग ले लेना ही थिएटर नहीं है। थिएटर के लिए संपूर्ण तैयारी चाहिए होती है, जैसे म्यूजिशियन बनने के लिए, गायक बनने के लिए। एक गायक को आलाप लेने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कितनी साधना करनी पड़ती है, ये आपको मालूम होगा, आप आसपास देखते होंगे। थिएटर में वैसा नहीं माना जाता है। थिएटर में आए तो पहले ही एकदम जोर लगा, या देख लिया है बाजू में तेरे दौड़ किया है, कितना क्या है वो जो है मैं भूल रहा हूँ, वो आप जोर जोर से लगाते हैं ना, आवाज लगाते हैं बहुत जोर, लेकिन लगा। और इसी कारण मेरे बहुत सारे मित्र जो थिएटर वर्कर हैं और बड़े बड़े गहरे मित्र हैं, मुझसे थोड़ा नाराज भी रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात नहीं कहूँगा तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात क्या करना चाहिए। आपके सामने पूरा एक चार्टर होना चाहिए, एक चेकलिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में शब्द है, वो चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मुझे लगता है कि जो ज्यादातर जो पारंगत डायरेक्टर हैं उनके यहाँ ट्रेनिंग होती है, पर हिंदुस्तान में वहाँ भी ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत कम है और स्पेस ही नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम है कि थिएटर का रिहर्सल कहाँ करें। और हर आदमी जो आजकल थिएटर में आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ आपत्तिजनक जिसकी माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की संवेदनशीलता को झटका लग सकता है। लेकिन कई लोग थिएटर करने इसलिए आते हैं, और ये अपने आप में गलत नहीं है, पर वो आते इसलिए हैं कि उनको टीवी या फिल्मों में या वेब सीरीज में काम करने का मौका मिले। तो एक बेसिक तैयारी लेकर के आते, बेसिक तैयारी के लिए आते हैं, अपने बायोडाटा के लिए आते हैं कि मैंने इन सर के साथ जो है सो मैं फला संदीप रावत जी के साथ या किसी जी के साथ इतना काम किया है, मेरा फोटो है। तो अब मिलता भी है, काम मिलता भी है, अपने आप में कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन तैयारी के हिसाब से ज्यादातर लोग थिएटर के लिए तैयार नहीं होते, वे वेब सीरीज के लिए तैयार हो जाते हैं, टेलीविजन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिल्म के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिल्मों में उनके जो रोल उनको मिलते हैं वो उसी अनुसार एक प्रोफाइल बना लेते हैं, मिल भी जाता है। लेकिन ये थिएटर का प्रिपरेशन नहीं है, ये कंप्लीट एक्सपीरियंस थिएटर नहीं है। ये एक ऐसा अवरोध है जिसके बारे में थिएटर कर्मी ही, हमारे बहुत सारे निर्देशक उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि क्या 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 है ये मामला। और हमारे थिएटर इंस्टीट्यूशन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। NSD 1 है, 26 लोगों का एडमिशन होता है, 2 साल से वो भी नहीं हो रहा है। भारतीय नाटक अकादमी है, तो वहां पर भी ये सचेतनता नहीं है, क्योंकि पोस्ट सर्टिफिकेट ले लेने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद जो ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी चीज है, देखिए म्यूजिक में क्या है, म्यूजिक में जो ट्रेनिंग है वो वर्षों वर्षों चलती है।
वो ये नहीं कि 3 साल में आपने म्यूजिक का ट्रेनिंग लिया तो आप म्यूजिशियन हो गए। वो थिएटर एक ऐसा है कि आपने किसी प्रकार एक नाटक में क्राउड में ही अगर आपने एक्टिंग कर लिया तो आप एक्टर हो गए। और एक बार इब्राहिम अलकाजी ने, जब उनका एक लंबा इंटरव्यू मैंने लिया था, तो उन्होंने कहा कि रवीन जी, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग आते हैं क्राउड सीन में, फिर वो कहते हैं कि मैं एक्टर हैं। लेकिन इंग्लैंड में, उनका इंग्लैंड का एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर जो थिएटर का आपका मैनेजर ये नहीं कहता है कि ये आदमी एक्टर है, तब तक आप कोई रोल ही नहीं पा सकते। पर हिंदुस्तान में तो रोल पाना आसान है। बीए पास किया, कहीं से आ गए, किसी निदेशक या पहुंच गए। आप में कुछ क्षमताएं भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि क्षमताएं नहीं होती हैं, आपकी आवाज़ पर क्षमता होती है, लेकिन अमूमन लोग बिना कंप्लीट थिएट्रिकल ट्रेनिंग लिए ही थिएटर में आते हैं और फिर रोल भी उनको मिल जाता है, फिर वो चले जाते हैं बिना ये एहसास किए कि उन्होंने थिएटर ट्रेनिंग दरअसल ली नहीं और थिएटर के एक्टर नहीं रह पाए। इसलिए आप देखिएगा कि थिएटर एक्टर करने वाले लोग बहुत, जिनकी पहचान सिर्फ थिएटर है, जैसे नसीर हैं। नसीर फिल्मों में भी काम करते हैं, पर नसीर एक कंप्लीट थिएटर एक्टर हैं। ऐसे एक्टर बहुत कम हैं जो थिएटर पर आकर के भी एक चमत्कार पैदा करते हैं। वे रोल में आते हैं, रोल करते हैं, चले जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ नहीं होने से कुछ हो जाना अच्छा है। लेकिन जो कंप्लीट थिएटर का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ नहीं है, और इसलिए इसका कारण है कि थिएटर में उस तरीके से आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। तो अगर आप सोचता है कि जब मैं संपूर्ण इसमें लगा दिया है तो क्या है, मुझे तो अगर रोल करूंगा मैच्योर थिएटर तो पूरी तरह से चाय पानी का खर्चा भी थिएटर वर्कर को ही उठाना पड़े। ये पेचीदियां हैं, इसके बारे में कम से कम बोध होना चाहिए। आप काम करते हैं बहुत सारी चुनौतियों के बीच ही, लेकिन वे चुनौतियां हैं इसका बोध होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे हमारे क्योंकि बहुत कुछ चीजें ऐसी सीखने की होती हैं, जैसे डायलॉग डिलीवरी है या म्यूजिक है। तो म्यूजिक के प्रति आप तब तक सेंसिटिविटी डेवलप नहीं करते हैं जबकि आप अच्छे संख्या में म्यूजिक न सुने या अब गाए नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, या कोई बात, म्यूजिक की ट्रेनिंग होनी जरूरी है। जब आप म्यूजिक की ट्रेनिंग होती है तभी आप कोई किया रंग कर भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं फिर से कहता हूँ कि मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन खिड़कियों को खोलने की बात कर रहा हूँ जो अमूमन हमारे हिंदुस्तान में थिएटर वर्कर लोग या तो बंद किए रहते हैं, कई बार उनका लगभग थिएटर में 20, 25, 50 साल गुजर जाता है, पर उनको ये एहसास नहीं होता है कि उनके दिमाग में रंगमंच संबंधी जो कई खिड़कियां थी वो खुले ही नहीं, हमेशा बंद की बंद रह गई। इसी तरह से फिजिकलिटी में है। अब फिजिकल थिएटर की बात तो, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग कितनी करते हैं। में मैंने तो कोई ऐसे लतीफे और वाकई याद हैं एनएसडी में, जब जो बिना, जिनके पास योग की कोई डिग्री नहीं थी या योग को, वो भी योगा टीचर हो जाते हैं। पर योग को भी हमारे यहाँ जो बहुत आवश्यक है, श्वास पर नियंत्रण करने के लिए बहुत जरूरी है, और जिस नेता को श्वास पर नियंत्रण नहीं है, आपको अपने श्वास पर पूर्ण नियंत्रण। आई गेस सर का नेटवर्क इशू आ रहा है, सर फिर से पॉज हो गए। हेलो सर,
आपको आवाज आ रही है हमारी? सर आप म्यूट हैं। सर माइक का ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन के आसपास। हाँ। सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी, आप सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी। एक बार आप कैमरा को, हाँ, ऐसे अगर करके आप बोलें शायद तो मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू ना आए। कैमरा अगर कैसे आपको कोई कैसे एतराज बोलूं? ना हो तो। नहीं नहीं, अरे हाँ इतराज मतलब क्या ऐसे। होगा, मैं तो अक्सर करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं ठीक पहली है। बार ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है तो हाँ जी, आप फिर से म्यूट हो गए हैं सर। आप फिर से म्यूट हैं। अ, हाँ, अब अनम्यूट हो गए हैं आप। कुछ बोलिए हो सर। गया? हाँ हो जी। गया, लेकिन अब चेहरा नहीं हाँ दिखाई जी। पड़ रहा है। सर लेकिन आपकी आवाज़ बेहद अच्छी आ रही है अब। मैं ऐसे ही बोलता चला जाता हूँ, उसमें क्या दे, वो चेहरा देखे ना देखे, हाँ जी, अगर, फिर हाँ भी। जी, कुछ अगर होगा तो मैं आपको यहाँ से इत्तला कर दूंगा। हाँ जी। हाँ। था तो मैं बात ये कर रहा था कि श्वास पर नियंत्रण की बात कर रहा था। श्वास के प्रति भी अगर आप बहुत संवेदनशील अगर आप नहीं हैं, जो उम्र आरंभिक दिनों में नहीं होते, तो भी एक अभिनेता को चुनौती आती है कि क्या करें। एक और पहलू है, एक बहुत लंबी बातें है, इस पर तो पूरी किताब न लिखी जाए, बहुत लंबे लंबे लेख लिखे जा सकते हैं। वह है कि थिएटर ट्रेनिंग इस कोरोना काल में भी मुश्किल हो गया है। और एक कोरोना काल में की समस्या एक ये हो गई है, या उमन रंगमंच के बारे में एक बंधी बधाई धारणा है कि ये सिर्फ फिजिकल स्पेस में दर्शकों के सामने ही किया जाना चाहिए और वही होता है, और जो उससे बाहर किया जाता है वो थिएटर नहीं है। यानी कि अगर आप वर्चुअल कर रहे हैं, वर्चुअल स्पेस में कर रहे हैं, कोई नाटक तैयार कर रहे हैं, तो वो नाटक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात भी सच नहीं है, ये भी एक धारणा है। कई बार हम अपनी धारणाओं को ही सच मान लेते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वो फिल्म देखी है या नहीं देखी है, श्वासांक रिडेम्पशन, द श्वासांक रिडेम्पशन, हॉलीवुड की 20वीं शताब्दी की बहुत बड़ी फिल्म है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उसको अवश्य देखें। वो नेटफ्लिक्स पर भी है, इसलिए आप मुश्किल नहीं है, जिनके पास नेटफ्लिक्स वो देख सकते हैं। और वैसे तो फिल्म कई चीज़ों के बारे में है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, पर उसमें एक चरित्र के बारे में बताता हूँ। बहुत छोटा चरित्र है उस फिल्म का। वो एक व्यक्ति है जो 50 साल से जेल में है। तो अमेरिका में तो वहाँ है ना कि आप सजा काट रहे हैं तो कभी आपको 60 साल की सजा हो सकती है। तो उसको लंबी सजा, 50 साल के बाद उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है, उस वृद्ध आदमी। वृद्ध आदमी को जब पैरोल पर छोड़ा जाता है, वो जाता है जहाँ उसको रहने के लिए कहा गया है कि आप पैरोल पर यहीं रहेंगे। तो वहाँ जाता है, वह जाते ही, वहाँ पहुँचते ही वो बड़ी परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि जिस उम्र में वो जेल गया था, शायद 20-22 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में गया था, उस समय उस शहर में जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ सड़क पर बहुत कम कारें थी, गाड़ियाँ थी। अब 50 साल में इतना बदलाव हो गया, पूरा शहर बदल गया, और वहीं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, दुकानें ही दुकानें हैं। वो कई बार देखता है कि वो कुचल जा रहा है, कुचला जा, कुछ ही कुचल ना जाए, उसको डर लगाता है। तो उस शहर से वो तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। और वो जो है सो, वो जो आज़ादी जो उसको पैरोल मिली है, जहाँ उसको संभावना उसके सामने है कि वो अब एक मुक्त जीवन बिता सकता है, आज़ाद जिंदगी जी सकता है, वो लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। वो उस बदले हुए वक्त में वो तालमेल नहीं बिठा पाता है और आत्महत्या कर लेता है, वो बूढ़ा। छोटा सा वाक्य है, अगर आप और भी फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको और भी चीजें मालूम होंगी। मेरे कहने का आशय ये है कि कई बार जो आपकी आदतें हो जाती हैं, उसको आप युग सत्य मान लेते हैं। युग सत्य ऐसा नाम की कोई चीज नहीं होती। दरअसल वो हमारा हैबिट है। लेकिन जब तकनीक बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो बहुत सारी नई चुनौतियां भी समाज में आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो चीजें हो रही थी वो गलत थी, वो भी सही थी।
लेकिन तकनीक जो है एक नया अवसर भी देता है। इसको लेकर के भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है और ज़्यादातर थिएटर वर्कर यही मानते हैं कि जो कोरोना काल है इसमें थिएटर नष्ट हो गया है, जो कि किया है, लेकिन उनको वर्चुअल थिएटर से परहेज है। मुझे उनसे मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात ये कह रहा हूँ कि इस तरह से सोचना कि अब वर्चुअल थिएटर अपने आप में थिएटर नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये हमारे दिमाग में बना हुआ ढांचा है जिससे हम संघर्ष कर रहे होते हैं, वही दोहराता है अपने, तो हमारी एक आदत हो जाती है। लेकिन क्या सवाल ये है कि इस समय में जब फिजिकल थिएटर संभव नहीं है, फिजिकल थिएटर करने में बीमार होने की, कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है, जान भी जाने की आशंका है, तो क्या थिएटर छोड़ दिया जाए या वर्चुअल थिएटर भी किया जाए? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या निष्क्रिय हो जाया जाए या जितना मौका है उस मौके का उपयोग किया जाए? और वर्चुअल स्पेस में जैसे आज हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत संभव नहीं थी। इस बातचीत को संभव करने के लिए एक जूम नाम का या और भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर ये कोई कहे कि नहीं, जो फिजिकल स्पेस में यानी कि हॉल में अगर आपके बात होते तो बात ज़्यादा शानदार होती, ज़्यादा हम तक पहुँचती, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वही बात हॉल में भी कहता और उसी ढंग से आप उसको सुनते जैसे अभी सुन रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, आदत का फर्क, यानी कि एक समय में बदलाव। जो बात मैं कर रहा हूँ उसका लब्बो लुआब ये है कि जब समय में बदलाव आता है तो नई तकनीक की भी जरूरत पड़ जाती है। इसका फिर से बता दूं कि ये इसका अर्थ नहीं है कि जो फिजिकल थिएटर हो रहा है वो गलत था, वो भी सही था, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो हम विकल्प की तलाश भी करें। हिंदुस्तानी समाज में, भारतीय समाज में, हिंदी भाषी समाज में तकनीक को लेकर के भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। अमूमन कह दिया जाता है कि भाई तकनीक के आगे क्या है, तो ये तो तकनीक है, ये तो थिएटर नहीं है। लेकिन अब गौर से देखिए, थिएटर टेक्निक ही है। थिएटर में म्यूजिक होता है तो क्यों होता है, कई तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, क्यों होते हैं? थिएटर में लाइट की व्यवस्था होती है, बिना टेक्निक के संभव है क्या? साउंड की व्यवस्था होती है, बिना टेक्निक के संभव है क्या? तो अगर आपको वर्चुअल स्पेस में भी थिएटर करने का मौका मिले या मिल रहा है, और मिलना कोई भी कर सकता है, दिस पोजीशन हैज डेमोक्रेटाइज्ड द थिएटर वर्ल्ड, मेनी आर्ट वर्ल्ड। आज ऑनलाइन पर एजुकेशन सिस्टम यह है, कई टेक्निक हैं, कई तरह के आर्ट टीचिंग है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, लोग सिखा रहे हैं और आर्टिस्ट बन रहे हैं। आज कई दुनिया के कई बड़े आर्टिस्ट जो हैं, यानी कि मैं प्लास्टिक आर्ट की बात कर रहा हूँ, पेंटिंग और मूर्ति शिल्प की, वो कंप्यूटर पर ही पेंटिंग कर रहे हैं और कंप्यूटर पर स्कल्पचर भी बना रहे हैं। 3D स्कल्पचर के बहुत सारे ढांचे बन रहे हैं जो कंप्यूटर पर बन रहे हैं, ऑनलाइन बन रहे हैं, वो भी बाद में जाकर के फिजिकल स्पेस में आएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा मौका आता है जब रास्ता बदलने की भी इच्छा होती है, नए ढंग से सोचने की जरूरत होती है, निष्क्रियता नाम की जो चीज है उससे उबरने की जरूरत होती है। ये भी आज के अभिनेता के सामने एक चुनौती है। ये तो थिएटर की बात हो कि नाटक करें या न करें, निर्देशक, लेकिन अभिनेता की तैयारी ये है कि क्या वह अपने आप को इस वर्चुअल थिएटर वर्ल्ड में भी अपने आप को तैयार कर सकता है? क्या वो अपने क्योंकि अभी तो अभ्यास ही छूट गया है। अगर अभ्यास ही नहीं होगा तो आप एक्टिंग क्या करेंगे मंच पर? ये नहीं कि आप 3 साल अपने अभ्यास छोड़ दिया और 3 साल के बाद आप मंच पर थिएटर करने जाएंगे, आपको मिल जाएगा। जो संगीतकार होता है या संगीतकार होती हैं, उनको रोज का ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। थिएटर भी रोज प्रैक्टिस की चीज है, लेखन भी रोज प्रैक्टिस की बात है। अगर आप 4 दिन लिखना छोड़ दें तो आपको लिखने में कुछ भूल जाएंगे। वैसे ही संगीतकार अगर रोज रियाज ना करे तो 5वें दिन वो भूल जाएगा या भूल जाएगी। इसलिए बड़े से बड़े संगीतकार को, बड़े से बड़े गायक को रोज रियाज करने की जरूरत होती है। उसी तरह एक्टर को भी रोज रियाज करने की जरूरत होनी चाहिए।
जो एक्टर यह सोच ले कि अभी हम इस कोरोना काल में नहीं करेंगे, नाटक होगा ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आने वाले समय में जब कोरोना मुक्त समय होगा तो भी वो प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस छूट चुकी होगी उसके लिए। ये बातें ऐसी हैं जो अमूमन थिएटर के किसी पाठ्य पुस्तक में या नहीं है, पर मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं रोज अनुभव करता हूँ थिएटर पर लिखने वगैरह की वजह से, कि अगर आप एक वर्चुअल स्पेस में भी एक्टिंग के लिए अपनी संभावना ढूंढते हैं, एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में अपनी जगह बनाते हैं, तो आप रंगमंच में अपना बेहतर भविष्य बनाते हैं, क्योंकि कभी न कभी चीजें मुक्त होंगी, कभी न कभी कोरोना मुक्त समय भी आएगा, फिजिकल स्पेस में भी थिएटर होगा। लेकिन उस समय अगर आपको ये लगे कि 3 साल हाँ या 2 साल या 1.5 साल हमने कुछ किया ही नहीं और रातों रात आप मंच पर जाकर के तो झंडा गाड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी को लेकर के दिमाग में जो बहुत सारी बाधाएं बन जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं, सोच में बाधाएं बन जाते हैं, लोग अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करते हैं, वो भी खोलने की जरूरत होती है। और ये भी एक भारतीय अभिनेता के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में तो वैसे भी टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ शंकाएं नहीं, और थिएटर वर्ल्ड में तो और भी अभी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग, बहुत सारे पुराने जो वेटरन हैं थिएटर के, उसमें लगभग 80% लोग ये कहते हैं कि ये थिएटर हो ही नहीं सकता है वर्चुअल थिएटर, पर मैं ऐसा नहीं मानता। तो ये जो मेंटल ब्लॉकिंग है, ये जो मानसिक अवरोध है, ये भी भारतीय अभिनेता के सामने एक चुनौती है, और जिसका सामना उसे करना चाहिए था। संदीप जी से मेरी जो बातचीत हुई थी उसमें यह था कि लगभग हम 40-45 मिनट तक मैं बोलूँगा, उसके बाद सवाल जवाब आएंगे। तो अपनी बात तो मैंने मोटे तौर पर रख दी है, और मेरा ये भी मानना है कि एक बार में 40-45 मिनट से ज़्यादा बोलने में अमूमन वो बोरिंग हो जाता है, एक तरफा कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन तभी प्रभावशाली होता है और जब वो दो तरफा कम्युनिकेशन। आप मंच पर भी जी जब सर। जाएंगे तो एक ही एक्टर हमेशा ऐसा नहीं कि बोलते रह जाए तो नेटवर्क होगा, एक्टर भी, दूसरे एक्टर जो उसका सहभागी एक्टर है वो भी तुरंत ना बोले तो नाटक नहीं जमता है। ये बातचीत भी, और भी बातें हैं कहने के लिए, पर मैं इसको मोनोलॉग नहीं देना चाहता। मोनोलॉग मेरा हो गया 45 मिनट का। मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो बातें मैंने कही हैं उसको लेकर सवाल हैं, या कुछ आपत्तियां भी हैं, आपत्तियां भी हो सकती हैं। आपत्तियां भी न कहीं आप जब शेयर करेंगे तो आपको जो मैं बात कहूँगा उससे आप असहमत या सहमत हो सकते हैं। तो आप कीजिए, मुझे लगता है कि ये बातचीत मैं अपनी ओर से फिलहाल बंद कर रहा हूँ, और मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। और मैं अभी वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही सवाल सुन लूँ कि पता नहीं कोई और गड़बड़ी ना हो जाए। क्या सर क्या कहते हैं सर आप मैं लोग? चाहूंगा आप कैमरा अभी तो ऑन कर लीजिए, अगर दिक्कत आती है तो हम आगे फिर देख लेंगे। ठीक है, और मैं करने की मैं अपने कोशिश सभी करता हूँ। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज वो टाइप करके आप चैट बॉक्स में अभी डाल ठीक दीजिए। हो गया? ठीक हो गया अभी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। बोलिए। तो जैसा सर ने, आई गेस सर ने बहुत एक लंबा टाइम पीरियड कवर किया हमारे लिए। काफी टाइम से जो एक्टर्स से प्रॉब्लम्स रही है, और अभी तक जो कोरोना काल में हम सब फेस कर रहे हैं आपकी आवाज कि रुक किस गई। मेरे लिए नहीं सुनाई। अरुण टेक्निकल टीम से क्या आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? हाँ थोड़ी सी बहुत बीच में हुई थी लेकिन उतनी नहीं। ओके, शैल आई कंटिन्यू? हाँ प्लीज। ओके। तो सर ने काफी एक लंबे पीरियड का हमारे सामने जितने भी चैलेंजेस अभी तक रहे हैं, और इवन अभी जो हमारे सामने एक्टर्स के चैलेंजेस आए हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, और उसमें काफ़ी चीज़ें सर ने रखी। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर गौर फरमाते हैं, क्योंकि सर को सुनते सुनते मुझे भी काफ़ी एज एन एक्टर क्वेश्चंस आ गए हैं। तो पहले हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सर, जैसे आवाज कि ब्रेक आपने कर रही बताया है ये मेरी, सारे। अंकित। हाँ जी सर, आपने आवाज ब्रेक हो बहुत रही थी सारी, बीच बीच में। ठीक,
आपने बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रखे, पर एक एज अ नॉर्मल एक्टर, ये क्वेश्चन दीपक का है। ही इज आस्किंग कि अगर डेली एक रूटीन अगर एक्टर का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पीरियड हो, वो क्या रहना चाहिए? अगर वो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो चुका है तो एक क्या डेली रूटीन शेड्यूल वो रख सकता है? देखिए वो सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। आई थिंक सर ने लीव कर दिया। ओके सर, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज बी विद अस and keep writing your questions in the chat box. I will try to ask each and every question. सर म्यूट है। सर आप म्यूट हेलो, हैं। मैं बोल रहा हाँ जी हूँ सर, ऐसे ही आवाज। क्योंकि ठीक है वो सर। मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो का। वीडियो रुक जा रहा है, हाँ जी, बोलने में मुझे लगता है बाधा नहीं है, मेरी आवाज़ लोग सुन लेंगे और हाँ जी। मुझे भी आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी न किसी निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो निर्देशक को ही अपना कोच माने और उसी से ये लें, एक बनाए, अपना चेकलिस्ट बनाएं या एक अपना जो नियमावली बनाएं, एक कैसे उनको काम करना है, स्पीच पर कितनी देर काम करना है, योग पर कितनी देर योग करना है, फिजिकली अपने आप को कैसा करना है। लेकिन अब वो वर्चुअली अगर एक्टिव होना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का भी एक अपने मित्रों के साथ मिल करके या शेयर करके, क्योंकि ये जमाना नेटवर्किंग का भी है। नेटवर्किंग में पॉजिटिव अर्थ में कर रहा हूँ। नेटवर्किंग के भी हमारे यहाँ दो अर्थ है। एक तो है कि नेटवर्किंग में मतलब कोई खास काम करता नहीं है, बस लोगों से संपर्क बना के करता है। लेकिन नेटवर्किंग में कह रहा हूँ कि आज ऐसी स्थिति आ गई है, अभी ये एक तरह से पॉजिटिव ये भी है कि आप फोन पर ही टेक्नोलॉजी की बहुत सारी जानकारियां यूट्यूब से, गूगल से ले लेते हैं। तो क्या ऐसे बहुत गाइडलाइन हमारे यहाँ बन रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं कि आप कैसे इसमें, आप कैसे अपने आप को एक्टिव रखें। उनके सामने ऐसे कई सारे कैप्सूल्स हुए हैं। तो क्या कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल सर्च करें वो कि कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है, कैसे अपनी एक्टिंग को बरकरार रखना है, कौन सा कैप्सूल है जो वॉइस टीचिंग कराता है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं देखता रहता हूँ। मुझे खुद चूंकि अभिनेता बनने की इच्छा नहीं है तो मैं सिर्फ देख के छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा है। और जिस निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं या आजकल की यंगर जनरेशन में बात ज़्यादा है, उनके पास वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से भी बहुत हेल्प भी मिल रहा है अपना आप डेली का रूटीन बनाने का, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। बातें वही करनी है जो आप करते हैं, स्पीच, वॉइस, फिजिकलिटी और रीडिंग पर कितना मेहनत है, एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस तो घर बैठे ही कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप स्क्रिप्ट को पढ़िए और समझिए कि क्या बात की जा रही है। लेकिन अपनी एक्टिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी से सहायता मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो जैसा सर ने कहा, जो भी आपके गुरु रहे हैं या फिर जिनसे भी आप सीख रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और अपना एक ऐसा शेड्यूल तैयार करें जिससे आप कभी भी इनएक्टिव ना हो एंड you could focus on your skills and keep your training on while performing or while doing acting in any field. So moving on to the second question. सर आपने ये सवाल है फाजिल से।
You mentioned that street theater affects your voice, but don't you think doing street initially helps in opening up the actor? तो बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये उस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि कितना स्ट्रीट थिएटर किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो स्पष्ट राय रखता हूँ जो मेरे कई मित्रों को ना पसंद है। अगर आप सचमुच के एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रीट थिएटर नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये मेरी राय है, कोई जरूरी नहीं है मेरी राय आप माने, लेकिन मैं मानता हूं कि स्पीच थिएटर जब आप लंबा कर लेते हैं तो आपके अपने वॉयस की बहुत सारी कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है हमेशा के लिए। ये धारणा है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी मेरे लिए नहीं है। मैं कोई ऐसी पॉपुलिस्ट बात नहीं करूंगा कि हाँ हाँ कर लीजिए, नहीं कर लीजिए। आप जितना करेंगे उतना ही अपनी स्पीच की कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे। इसको मुझे लेके इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत संक्षिप्त में यही जवाब, विस्तार में भी यही होगा, संक्षेप में भी यही होगा। जी सर, आई गेस फाजिल को अपना जवाब मिल गया है, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सर ये सवाल है वैभव मिर्जा का। ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर एक्टर्स अदर देन सिनेमा हु आर नॉट फ्रॉम एनी एक्टिंग इंस्टीट्यूट और हैव ओनली डन थिएटर। देखिए, वही बात तो मैंने कि भारत जैसे देश में कई मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें तो हैं ही हैं। अब सिनेमा के अलावा वेब, अब लेकिन अगर आप फैक्ट छोड़ दें उनको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका प्रॉब्लम है उसकी चर्चा मैंने कर दी, तो अब एक बार कर दी तो मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा अगर आप नहीं चाहेंगे तो। लेकिन अब तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल आ रहे हैं, बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, और वेब सीरीज बनाना भी आसान, रिलेटिवली आसान है। मुश्किल है पर आसान है। वेब सीरीज के लिए भी, वेब सीरीज जो लिख रहे हैं, वेब सीरीज के लिए फंडिंग भी हो रही है। अच्छा अगर वेब सीरीज है तो वो भी एक संभावना है। और एक वेब सीरीज है, पता नहीं आप लोगों ने कितने देखा है कि नहीं देखा है, द कामिंस्की मेथड। आजकल उसका थर्ड पार्ट भी आया हुआ है। वो थर्ड थोड़ा सा थिएटर ट्रेनिंग पर भी है, ज़्यादा नहीं है। उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, रिलेशनशिप भी है, फादर तो डॉटर नाम का। रिपीट कर देंगे एक बार। द कामिंस्की मेथड, THE, द कामिंस्की, KAMINSKY मेथड, METHOD। मेथड तो आप सब जानते हैं, अस्तारण सर्दी का मेथड था। ये वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर ये भी है, कई वर्षों से आ रहा है। अभी इसका नया आया है, थर्ड पार्ट आया है। आप उसको देखिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको आप देखें तो एक थिएटर ट्रेनिंग का प्रोसेस उसमें है, पर उसमें सिर्फ थिएटर ट्रेनिंग नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटर रिलेशनशिप भी है। लेकिन थोड़ा सा है, मतलब थिएटर ट्रेनिंग को लेकर के भी वेब सीरीज बन सकता है, ऐसा भी आपको उसमें एहसास होगा। अब तो स्पेन वगैरह में 150, 125, 175 एपिसोड के वेब सीरीज बन रहे हैं। फिल्म में तो वन टाइम होता है, वेब सीरीज अब बताइए 75 एपिसोड के 3-3, 4-4 वेब सीरीज ऐसे हैं जो साल भर चलते ही रहते हैं। मतलब तो ऐसी संभावनाएं भी आ गई हैं, यूट्यूब पर भी नए आ रहे हैं। तो थिएटर ने बहुत सारी खिड़कियां खोली भी हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ने। ये ऑप्शन भी है हमारे सामने, आपके सामने मतलब। तो जैसा सर ने कहा कि हमारे पास जैसे जैसे समय आ रहा है और हमारे पास अलग अलग एवेन्यूज आ रहे हैं जहाँ एक्टर्स अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, दे कैन फाइंड देयर करियर एंड शेप देयर करियर इन अ नाइस वे। सर अगला सवाल ये है कि आपने कहा था जैसे लोग धारणाओं को सच मान लेते हैं, तो एक थिएटर करने वाला इंसान जो नया नया थिएटर में आया है और अभी उसने सीखना शुरू किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आगे एक्टिंग करना चाहता हो, तो वो कब माने कि वो एक थिएटर प्रैक्टिशनर बन गया है? क्या एक बेसिक स्किल्स होंगे जो वो अपने आप से तय कर पाए कि उसने वो पोजेस कर लिया है और अब उसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये तो खुद अनुभूति की बात होती है। हाँ, लेकिन इसमें है कि आप लगातार अपनी आंखें खुली रखें, आप दूसरों के काम को देखें, दूसरे जो फिल्म के एक्टर भी हैं, फिल्म में भी जो काम होता है उसको देखें, खुद अपने आप को देखें, खुद आप नाटकों को देखें, खुद आप नाटकों में जो संवाद बोले जाते हैं वो आपके संवाद बोलने का कोई ऐसा तरीका आपके पास है, आप किस तरह से बोलते हैं, क्या आपका थिएट्रिकल प्रेजेंस है, कैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये तो कोई इसका गाइड बुक नहीं है, इससे कोई कुंजी नहीं होती।
ये तो एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ता है इंटरेक्शन के माध्यम से। यानी कि आप लगातार अपने को एक्टर्स जो हैं आपके, उनसे जो डायरेक्टर्स हैं, दूसरे एक्टर्स जो हैं, उनको देखते रहते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। आप जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, तो उसको भी एनालाइज करने की आपके अंदर मतलब ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। वो आप क्षमता लगातार विकसित करने की होती है, वो कहीं थमती नहीं है। मैंने कहा कि जितने बड़े संगीतकार होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक मुकाम पा लेने के बाद वो रुक जाते हैं, वो भी प्रतिदिन अभ्यास करते जाते हैं। तो कभी रुकना नहीं है, आपको लगातार करना है। ये जब आप रुक गए तो रुक गए। भाई ऐसे एक्टर होते हैं, आप देखेंगे फिल्मी दुनिया में, जो अब आते हैं तो बड़े बोर करते हैं, क्योंकि तो रुके हुए लोग हैं। तो या थिएटर में भी बहुत लोग रुक जाते हैं, कोई उम्र नहीं है, बल्कि आप 75 साल के भी हो गए हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन प्रैक्टिस आपको, जैसे कि हिंदुस्तान में तो एनएसडी जैसे संस्थान में भी स्थिति यह है कि आप 40-45 दिन के बाद आप थिएटर को आप कहते हैं कि अब नाटक करने लायक आ गया, पब्लिक शो कर दो। लेकिन स्थिति यह है, कई ऐसे देश ऐसे हैं, रूस वगैरह, जहाँ एक साल रिहर्सल चलता रहता है। लेकिन उसकी एक इकोनॉमी है। अब 1 साल रिहर्सल अगर कोई नाटक करे, हिंदुस्तान में करे, तो वो तो एक्टर भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहाँ इकोनॉमी है कि वो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है जो एक्टर को सपोर्ट करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था भी हमारे पास नहीं है जहाँ इतना लंबा रिहर्सल कर सकें। लेकिन अब उसी में एक व्यावहारिक रास्ता चुनना पड़ता है कि भाई हम कम समय में भी, कितने समय में भी, 30 दिन में भी, 40 दिन में करते हैं। तो एक व्यावहारिकता है, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है जो कई जगह ये है। तो अब इसी में एक व्यावहारिक जो सीमा है, उसके भीतर अपनी राह बनानी पड़ती है। और उसका कोई नुस्खा हो, ये मैं आपको न बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा नुस्खा होता भी नहीं है। बस। तो सही मतलब कहीं ना कहीं एक अभिनेता को एक इंसान के तौर पर पे अपने सारे सेंसेस खोल के रखने पड़ेंगे, जिससे वो अपने आप को पहचान पाए कि कब वो तैयार है और कब वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। ठीक। सर, अगला सवाल, क्योंकि जैसे कि हमारे पास काफी सारे वो हैं जो वो लोग हैं जो अभी नए हैं या फिर वो सोच रहे हैं थिएटर करने की, अभी अपने इस करियर में थिएटर सीखने में अभी बहुत नीचे पड़ाव पर हैं। तो उनका सवाल ये है कि ऑल्दो आपने क्रिटिक किया काफी चीजें कि हमारे पास सिर्फ 26 सीटें एनएसडी में या फिर कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, तो इस तरीके से अगर कोई जो अभिनेता बनना चाहता हो या फिर अभिनय के इस कला को सीखना चाहता हो, एक्टिंग सीखना चाहता हो, तो शुरुआत में उसको काफी कुछ नहीं पता होता, तो अगर उसे एनएसडी एफटीआई में जगह नहीं मिल रही है तो किस तरीके से थिएटर का या थिएटर ग्रुप का चयन करें? नहीं, इसमें रास्ता तो है कि वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, या तो जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ ज्वाइन करें। या अगर उनके पास इतनी क्षमता है, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी है, दिल्ली शहर में आ सकें, तो वहाँ आके ज्वाइन करें। लेकिन अभी तो कोरोना काल में कहीं आप जा नहीं सकते। आप किसी गली में तो क्या, आप दिल्ली भी कभी नहीं आ सकते। तो अभी तो ये देखना है कि आप आपके पास जो लैपटॉप है या जो मोबाइल है, उससे आप क्या कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए, शायद वहाँ बहुत लोग, मतलब वेस्ट में तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे लेक्चर हैं थे जो मैं देखता रहता हूँ। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो टीचिंग करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं कि आप कैसे ग्रुप तैयार करो। धीरे धीरे तैयार होगा। मैंने कहा ना कि नेटवर्किंग का प्रोसेस जो शुरू हुआ है ऑनलाइन या वर्चुअल स्पेस पर, वो भी बड़ी संभावनाएं पैदा कर रहा है। और ये आवश्यक नहीं है कि कई बार कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए फिलहाल इस कोरोना काल में दिल्ली या किसी अपने शहर के ग्रुप में रोज जाए। आप घर बैठे भी तलाश कर सकते हैं। तो ये तलाश आपको खुद करनी होगी, और खुद आपको वो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं तो अब क्योंकि ढूंढता नहीं, मैं तो यदा कदा देखता हूँ। ज़्यादातर तो मैं फिल्में देखता रहता हूँ और वेब सीरीज़ देखता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ। वो मेरी प्रायोरिटी भी नहीं है, पर मेरी जानकारी में है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर और वर्चुअल लाइन पर हैं जो आपको
सीखने की तरफ ले जा सकती हैं। और नहीं तो आप अपने 4 लोगों के साथ मिल करके भी बहुत सारे अब तो ऐसे भी ऐप आ गए हैं कि आप रिहर्सल, आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं, चौथा आदमी कलकत्ता में है, साथ बैठ के रिहर्सल भी कर सकते हैं। जब होगा तो देखेंगे। तो ऐसी संभावनाएं भी बनी हैं। ये जो नेटवर्किंग का, जिसमें पॉजिटिव नेटवर्किंग कहते हैं, वो भी हमारे सामने मौजूद है। उम्मीद है फरहान जी को अपना जवाब मिल गया होगा। सर, इसी कड़ी में एक और कुछ ऐसे सवाल थे कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जहाँ पे, या फिर आप यूं कहें कि एक्टिंग कोचेस की हमारे देश में प्रचलन नहीं है चीज़ें, और हमारे यहाँ मिलते भी नहीं है। तो अगर जिसको एक्टिंग सीखनी है और यूं कहें कि अगर एक्टिंग स्किल्स उस थिएटर ग्रुप के जरिए ही सीखनी है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी काफ़ी कमी है, तो इस तरीके से क्या एक तरीका हो सकता है जिससे कि नेशन वाइड या फिर जहाँ पे थिएटर ज़्यादा होता है वहाँ पे किस तरीके का माहौल बनाया जाए या बन पाए, या कौन बना सकता है जिससे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका हमारे पास हो, और जहाँ पे एक वो शक ना हो कि हाँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या ये ट्रेनिंग मेरी पूरी हो रही है, क्या मैं सही चीज़ें सीख रहा हूँ। देखिए, बातें तो फिर मैं यहाँ वही कहूँगा जो मोटे तौर पर मैंने कह दी है कि एक तो अभी जो कोरोना टाइम हुआ है उसमें 2 साल से NSD बंद है, वहाँ एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। तो इस साल, पिछले साल भी नहीं हुए थे, इस साल भी नहीं हुए। और ऐसे कई जगहों पर हो रहा है जहाँ खुले भी कुछ मध्य प्रदेश में, तो वहाँ लगभग इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ेगा और कगार पर है। तो अभी तो थिएटर इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। अभी तो 10वीं 12वीं के एग्जामिनेशन भी ऐसे ही लोग पास कर ले रहे हैं, तो थिएटर का क्या होगा। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपका रास्ता खुद तलाश करना है। हाँ, सब कुछ है आपके मोबाइल में, ये एक अच्छी बात है कि सब कुछ है, और अगर नहीं है तो डेवलप किया जा सकता है। ऐसे ऐप भी आए हुए हैं, कई ऐप आए हुए हैं। जैसे जूम की चर्चा आप कीजिए, आज जूम से मीटिंग हो रही है ना, हम लोग, चलिए अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, पर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ये पहले शायद संभव नहीं था और ये संभव हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं। अब ये तो तलाश आपको खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ बुनियादी जानकारियां इसके बारे में रखता हूँ, ट्रेनिंग के बारे में। ज़्यादातर जानकारियां तो जिसकी इच्छा है उनको खुद ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि ईश्वर को खुद ढूंढना पड़ता है, कोई आदमी आपको लाख बताया ईश्वर नहीं मिलता, कहावत है। वैसे ही आपको क्या करना है, ये तो आपको अपने दोस्तों के साथ बैठ करके प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल आप अपने मित्रों के साथ, चाहे वो जहाँ भी हों, तो ये वर्चुअल फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं। आप फेसबुक पर रिक्वेस्ट डालें, सब डालें, बहुत से लोग आपसे जुड़ जाएंगे और प्रक्रिया बनने लगेगी। शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाली में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आप जब शुरू करेंगे, बहुत सारे सोशल साइट्स ऐसे हैं, तो बहुत से लोग आपसे जुड़ जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप घर बैठे मत रहिए कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, भले 1 रुपया ना हो, 50 पैसे तो हो सकता है, 25 पैसे तो हो सकते हैं। जितना हो उतना कीजिए, और जब आप करने लेंगे तो हो सकता है कि 1 रुपया भी हो जाए। मैं सिर्फ यही कहूँगा फिलहाल। हेलो। तो इसका, हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। तो इसका सटीक सा अगर मैं इसको एक लाइन में कहना चाहूँ तो अपनी नाव का को आपको खुद ही चलाना पड़ेगा, उसके चप्पू भी खुद ही नाव का चलाने खवैया पड़ेंगे। खुद होना पड़ेगा। और उसकी दिशा और दशा भी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। सर, जैसा हमने शुरू में बताया था कि आप प्रसन्ना जी की इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग का ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तो उसकी कर दिया ट्रांसलेशन है, द्वारा, कर रहे हैं नहीं, हाँ कर जी, दिया है। हाँ जी, कर तो दिया है, पब्लिश होना है अभी इंस्टीट्यूट। जी, हम काफ़ी वेट कर रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद वो किताब हमारे हाथ में भी होती। तो अरुण का सवाल है कि उसको ट्रांसलेट करते वक्त आपने अगर और जैसे एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने अलग टेक्निक्स पे काम किए, तो आपके हिसाब से कौन सी टेक्निक्स होंगी जिनको आप अपने तरफ से सीखने के लिए एक अभिनेता को कहेंगे? नहीं, अब एक अभिनेता को हर जगह से सीखना चाहिए। और वो किताब जो प्रसन्ना जी की किताब है, जिसका नाम है इंडियन मेथड इन एक्टिंग,
तो एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें लोग जब जो अंग्रेजी जानते हैं उसको अंग्रेजी में पढ़ लेना चाहिए, और जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, और जब मेरे ख्याल से 2-3 महीने में वो किताब आ जाएगी। अब तक आ जाती, लेकिन कोरोना की वजह से प्रिंटिंग प्रेस भी बंद है, वहाँ भी काम बंद है, तो वहाँ भी नहीं हो पा रहा है बहुत कुछ, तो वो आ ही जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो किताबें हैं वर्चुअल स्पेस पर, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो ऑनलाइन या पीडीएफ में तो सारी किताबें, चाहे स्तानिस्लावस्की की हों, चाहे चेखव की हों, पीडीएफ के रूप में या ई बुक के रूप में मौजूद हैं, उसको आप देख सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा दुनिया का थियरिस्ट नहीं है जिसकी किताब ई बुक के रूप में मौजूद नहीं है। तो आप अमेजन से या इससे खरीद भी करके भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कई बार भाषा की समस्या होती है कि अंग्रेजी में वैसी नहीं है, तो वो एक ऐसी मुश्किल है जो मुझे लगता है कि जिसका निदान तो जो उसी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में ऐसी किताबें अभी कम हैं, ये एक वास्तविकता है। और ये भी एक वजह है कि हिंदुस्तान में एक्टिंग कोच नहीं है, और एक्टिंग कोच इसलिए डेवलप हुए, और ये तो स्तानिस्लावस्की की एक देन बड़ी बात है कि उसने एक मैनुअल लिखा, मेथड एक्टिंग का एक मैनुअल लिखा, जिसके कई अलग अलग रूप अमेरिका वगैरह में फैल गए, और वो हिंदुस्तान में अभी आया नहीं है। हिंदुस्तान में उसके अनुवाद भी हुए हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे अनुवाद नहीं है, हालांकि वो अनुवाद भी उपलब्ध हैं, आप मंगाएंगे तो हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आपके पास में भाषा की समस्या नहीं है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो स्तानावस्थी से लेकर माइकल चेखव से लेकर और भी बड़े बड़े जो कोच हैं या जो ट्रेनर हैं, उनकी किताबें उपलब्ध हैं। और कुछ उनके नटसेल तो विजुअल के रूप में वर्चुअल स्पेस में भी है, मतलब आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। ये भी ये स्थिति है, पर हिंदी में ऐसा बहुत कम हुआ है। और हिंदी में कम होने की एक वजह है कि यहाँ हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ा माइंड में ब्लॉकेज भी है। आप किसी भी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बड़े, जो अच्छे थिएटर कोच हैं, उनको भी कहिए कि आप एक कैप्सूल बनाइए 10 मिनट का एक्टिंग क्या है, वो नहीं बना पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम सीधे सिखाएंगे आप। मेरे ख्याल से वो जमाना चला गया है। अब आप मोबाइल के सहारे भी सिखा सकते हैं, या उसके सहारे वो कैप्सूल बनाना भी, मुझे लगता है आप लोगों को कहें, जागरूक करें। आप अपने जो जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उसको कहें, तो शायद हिंदुस्तान में भी हो जाए, हिंदी में भी वो आ जाए, वो सब कैप्सूल जो स्किल डेवलपमेंट के होते हैं वो आ जाए। लेकिन वो हिंदी में कम है, ये वास्तविकता है। अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा है, भरा हुआ है मोबाइल। सर, इसी कड़ी में जो आगे सवाल थे उनमें से काफ़ी के अपने जवाब इसी सवाल के साथ दे दिए हैं, कि कहीं ना कहीं हमें इस टाइम पे वर्चुअली चीज़ों को करने का अलग अलग तरीके ढूंढने होंगे, एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल और है कि ध्रुवी का, कि इस टाइम पे किताबों पर हमारा मतलब एक अभिनेता के तौर पर यूं कहें कि डिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो कितना कारगर होगा कि हम शुरुआती दिनों में एक्टिंग को या अभिनय को किताबों के माध्यम से सीखें? ये किताबें सीखने के माध्यम से सीखे हैं, जरूरी हैं। पर क्या होता है कि जो किताबें थोड़ी सी, उनमें आइडियाज ज़्यादा होते हैं, जो कुंजी मार का किताबें नहीं होती हैं, जो एक रीगर, वो पाठक से भी ये मांग करती हैं कि रीगर के साथ वहाँ आए, मतलब उसको बुनियादी जानकारियाँ भी होनी चाहिए। अब चूंकि मुझे लगता है कि ये जो अब हमारी बातचीत है उसमें ज़्यादातर युवा लोग भी हैं, तो उनको तो अंदर अंदर एक पढ़ने और समझने का स्किल भी डेवलप करना होगा, क्योंकि पढ़ना भी एक स्किल है। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और फट से आपकी समझ में, कई बार चीज़ों को समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, तब आप किसी पढ़ने जो, अगर आप किसी भी दुनिया के बड़े थिएटर थियरिस्ट को पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के पहले, समझने के पहले आपको अपने भीतर भी योग्यता विकसित करनी पड़ेगी। वो कोई ऐसा कैप्सूल ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आया, फट से आपने खाया और आपको समझ में आ गया।
ऐसा नहीं होगा। चाहे आप 10 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं, तो एक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एनालिसिस भी तो जरूरी है ना, सिर्फ एक्टिंग भी जरूरी नहीं है, चरित्र की समझ एक तो निर्देशक की होती है, फिर आपकी भी होनी चाहिए। और आपकी भी तब तक वो अच्छी नहीं होगी जब तक आपके भीतर एक अच्छी विश्लेषण क्षमता न मौजूद न हो। तो ये तुरंत पा लेना भी हमारे यहाँ एक चीज है और उसकी जरूरत भी पड़ती है। मैं इसके बहुत कोई खिलाफ नहीं हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुरंत पा लेने का भी जो नुस्खा है वो दूर तक नहीं ले जाता है। हाँ, आपको वो एक वेब सीरीज में रोल पाने तक ले जा सकता है, या फिल्म में रोल पाने तक ले जा सकता है, या सीरियल में रोल पाने की तरफ ले जा सकता है। उतना तो आसानी से संभव है, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यही है। जी सर। सर शुभम पूछ रहे हैं कि जैसा आजकल एक दौर है कि और आपने भी इसका जिक्र किया था कि काफी सारे लोग दिल्ली आते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हिंदी भाषी या यूं कहूँ कि बॉलीवुड जो है वो उसकी पहुंच ज्यादा है। तो काफी लोग इस तरीके से माइग्रेट होके जो मेट्रो सिटीज है वहां पे आके नाटक करते हैं। तो क्या हिंदी थिएटर से रीजनल थिएटर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो रीजनल थिएटर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, और उसी कारण जो लोग अपने शहर में रह के जो थिएटर कर सकते हैं या वहाँ पे अभिनय सीख सकते हैं वो नहीं कर पा रहे? देखिए, इसमें एक सेंटिमेंट है रीजनल का, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई, मैं इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं करता हूँ कि रीजनल थिएटर कमज़ोर हो रहा है। रीजनल थिएटर कई जगह हो रहा है और ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो नेशनल या इंटरनेशनल थिएटर है उसकी भी तो अपनी उपयोगिता होती है। देखिए, जितने आप एक्टिंग का पूरा इतिहास पढ़ जाइएगा, मेथड एक्टिंग का, वो कैसे डेवलप हुआ, वो रूस के कारण नहीं हो गया। स्तानिस्लावस्की ने उसको किताब लिखी, वो जब अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के हॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं ने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया, तब मेथड एक्टिंग जो है वो पूरी दुनिया में फैला। नहीं तो शायद मेथड एक्टिंग नहीं फैल पाता। एक्टिंग पहले से थी। और मेथड एक्टिंग क्या है? देखिए, मेथड एक्टिंग में सिर्फ यही है कि एक अभिनेता अगर वो अच्छा अभिनय करता है तो उस अभिनेता का अच्छा करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे अच्छा अभिनय करता है, क्या तैयारी करता है, क्या वही तैयारी मेथड है। पर चूंकि उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है, साइंस बनने लगता है, मेथडोलॉजी डेवलप करने लगती है, तो उसका एक बन जाता है कि आप ये करें। पहले भी थे, स्तानिस्लावस्की के पहले भी अच्छे एक्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद एक्टर कैसे अच्छे होते हैं जानने का आज हमारे पास तरीका नहीं है। स्तानिस्लावस्की ने वो खिड़की खोल दी जहां से आप जान सकते हैं कि कोई बड़ा एक्टर हॉलीवुड का भी वो क्यों एक्टर बना, इससे ट्रेनिंग ली। तो ये एक तरीका होता है जो आप, वो तरीका होता है कि आप, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे बोल रहे होते हैं तभी। वो एक तरीका होता है कि आप उसको विकसित करते हैं, ये डेवलप करते हैं, तब जाकर के वो पद्धति विकसित होती है आपके दिमाग में। मुझे तो यही कहना है। जी सर। कहीं ना कहीं हम पर ही ये निर्भर करता है कि हम किस तरह अपने थिएटर को आगे पहुंचा रहे हैं, चाहे वो अपने रीजनल लैंग्वेज में हो या हिंदी थिएटर में हो। सर, अगला सवाल स्पीति से है। वो पूछ रही हैं कि एक नया अभिनेता किसी भी नए ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले जैसे समीक्षा करता है तो उसके नाटक देखता है। कहीं ना कहीं आप उनके काम से पता लगाते हैं कि क्या आगे आप सीख सकते हैं वहां से। तो किसी भी नाटक की समीक्षा कैसे की जाए, किन चीजों का ध्यान रखा जाए आप जब एक नाटक को देखते हैं? देखिए, पहला तो बुनियादी होता है कि आप नाटक देखिए और बार बार देखिए, तो अपने आप आपके भीतर वो समीक्षा दृष्टि विकसित होने लगेगी। तब आपको लगेगा कि ये एक्टर ने कहाँ किया है, कहाँ वो स्पीच में अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, कहाँ उसके स्टेप कैसे हैं, को एक्टर के साथ वो कैसे काम कर रहा है,
जिस को एक्टर के साथ वो संवाद का शेयरिंग कर रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आलोचना, जो साहित्य की आलोचना है, बुनियादी रूप से यहाँ से कोई आलोचक बनना शुरू होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग में डिस्टिंक्शंस पैदा होने जाते हैं। मैंने कहा कि कोई एक आलोचना की किताब पढ़ करके आप आलोचक बन जाएं, ये गलत तरीका है। वैसे ही समीक्षा, जब आप ज़्यादातर नाटक देखेंगे तो आपके भीतर खुद एक समीक्षा दृष्टि विकसित करने लगेगी, और उस समीक्षा दृष्टि में आपको लगेगा कि अरे संगीत कितना अच्छा है इसका, या संगीत कितना कमजोर है, इसमें जो वॉइस का अरेंजमेंट है, वॉइस जो है वो कितना कमजोर है, ये लाइटिंग कहाँ कमजोर हो गई है, कहाँ लाइट पड़ना चाहिए था। ये अपने आप विकसित होने लगती है, बशर्ते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाटक देखें, न सिर्फ अपने ग्रुप का बल्कि दूसरे ग्रुप का, तो तभी विकसित होगा। कोई मैं अभी कह दूं कि एक नुस्खा है, भाई मैं लिखता हूँ, वो लिखता तो शब्द सीमा है, 500-600 शब्दों में आपको अखबारों में लिखना पड़ता है, लेकिन नाटक उतना ही नहीं है जितना मैं लिख देता हूँ। समीक्षा उतनी ही नहीं है। समीक्षा एक अभिनेता एक शो में क्या किया और दूसरे शो में क्या कर रहा है, ये देखने के लिए आपको हो सकता है कि उस नाटक के कई शो देखने पड़े। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप शो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाटक देखेंगे, तो अपने आप आपके भीतर वो समीक्षा दृष्टि विकसित होने लगेगी। ये है इसका मूल बात, यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। साहित्य की समीक्षा के बारे में भी सही है और नाटक के समीक्षा के बारे में भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल है वैभव का। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आपको दिल्ली युवा निर्देशकों में कितनी संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा जो थिएटर है वो दिल्ली में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के युवा निर्देशक हैं उनके हाथ में, या फिर यूं कहें कि उन पर ये कमान है, उनके पास ये कमान है कि कैसे थिएटर को आगे ले जाया जाए और इसकी उन्नति में काम किया जाए। देखिए, एक तो गलत धारणा है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा थिएटर दिल्ली में हो रहा है। मुझे लगता है दिल्ली से ज़्यादा थिएटर कोलकाता में, मुंबई में, शायद बंगलोर में भी होता है। दिल्ली में भी हो रहा है, पर दिल्ली में थिएटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना एक बड़ा शहर है उतना है नहीं, तो ये एक समस्या। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि दिल्ली में कई ऐसे युवा निर्देशक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नाम मैं अभी जानबूझ के नहीं लूँगा कि वो एक, जिसका नाम लो न छूट लो, एक दूसरी विवाद पैदा कर देता है। मूल बात है कि कई अच्छे युवा निर्देशक काम कर रहे हैं। यदा कदा मैं अपने स्तंभ में उनका नाम लेता भी रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आपके के मन में कोई ऐसी धारणा किसी के पक्ष या किसी के पक्ष में बन जाए, उतना बुरा नहीं है, और किसी के विपक्ष बन जाए ये बुरा मानता हूँ। क्योंकि हर आदमी, हो सकता है कि कोई युवा निर्देशक एक नाटक अच्छा ना कर पाए और दूसरा अच्छा कर डाले, तो संभावनाओं की बात होती है। तो पर युवा निर्देशक दिल्ली में उभर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और मुझे उनमें से कईयों से काफ़ी आशाएं हैं। कईयों पर मैंने लिखा भी है, कई हैं, और प्रक्रिया चल रही है दिल्ली में। कम से कम कोरोना काल शुरू होने तक तो चली थी, फिर रुकी हुई थी, तो यही स्थिति है। और जी, इस जवाब से मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं सर के साथ फेसबुक पर जुड़ा हूँ, तो आप जिनका ये सवाल था वैभव जी का, कि अगर आप सर के टाइमलाइन पे जाएंगे, सर ने काफ़ी नाटकों के बारे में लिखा है, उनको क्रिटिक किया है, तो आप लिहाजा वहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के नाटक दिल्ली में हो रहे हैं, कैसे निर्देशक आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के नाटक खेले जा रहे हैं। तो सर इसके बाद एक सवाल था मेरा, ये मैं अपने तरफ से ही पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा था कि बहुत सारे एक्टर सिर्फ थिएटर को एक एलिजिबिलिटी की तरह लेकर आते हैं कि उन्हें टीवी या सिनेमा में जाना है तो कुछ समय के लिए थिएटर को छू लिया और यहाँ से चले गए, और कहीं ना कहीं वो थिएटर प्रैक्टिशनर जो हम अपनी भाषा में कहते हैं वो नहीं बन पाते, लेकिन उसका टैग लेना उनको बहुत पसंद है। तो ऐसी क्या सिर्फ ये उनकी तरफ से दिक्कत है, या फिर ये मैं यूं कहूँ कि एक अभिनेता के लिए थिएटर में आगे अवसर पाना, ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, आगे करियर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थिएटर से
और हमने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं कि जो थिएटर करके कहीं ना कहीं सिनेमा में या वेब सीरीज में चले जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं कारण पैसे भी आप कह सकते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जो कि थिएटर में हम एज एन एक्टर या अभिनेता हम आगे बढ़ जाएं और करियर यहाँ बना पाएं? देखिए, इस बारे में मेरा जो जवाब है थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब 3-4 मिनट का होगा। एक तो मैं इसको गलत नहीं मानता कि कोई थिएटर में आया, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह आया और वेब सीरीज या टेलीविजन या फिल्मों में गया। इसको मैं गलत, कुछ लोग गलत मानते हैं, आरोप लगाते हैं कि थिएटर में हो, इसमें क्या गलत है? हाँ, एक स्थिति है, एक सिचुएशन ऐसा है। ये सिचुएशन के बारे में बोलता हूँ कि अधिकतर लोग इसलिए आते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आखिर हर व्यक्ति के भीतर एक डिजायर होता है, वो डिजायर होता है अपनी स्वीकृति का। वो हिंदुस्तान में अभी जो थिएटर की स्थिति है और हिंदी भाषी इलाके में, वो आपकी स्वीकृति ज्यादातर मिलती है फिल्मों के माध्यम से या वेब सीरीज के माध्यम से। तो वो अपने आप में गलत नहीं है। कुछ लोग बीए करते हैं, कुछ लोग बीए करने के बाद एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं, ये उनका निजी चॉइस है। पर कुछ लोग बीए करने के बाद नौकरी कर लेते हैं, उनका निजी चॉइस है। दोनों सही है अपनी जगह पर। लेकिन ये बात अपने आप में सही है कि हिंदुस्तान में थिएटर, सिर्फ थिएटर के बल पर आप एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ थिएटर ऐसे हैं, जैसे बंगाल में है या मोबाइल थिएटर असम का है या झाड़पट्टी थिएटर, जहाँ वो एक पैसा भी आ गया है, पर वहाँ भी वही एक्टर जाते हैं मुख्य रूप से जो उन फिल्मों के सेलिब्रिटी एक्टर हो जाते हैं। यानी कोई सामान्य एक्टर जाके वहाँ बड़ा एक्टर बन जाए, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये स्थिति है हिंदुस्तान में थिएटर में, बल्कि ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में जो बड़े एक्टर हैं वो सिनेमा में गए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिनेमा में न जाएं या सीरीज में न जाएं। बात यह है कि एस्थेटिकली पर सिर्फ सिनेमा में आप जाने से ही बड़े एक्टर नहीं हो जाते, ये बात समझने की। तो दोनों बातें हैं, समझनी पड़ेगी। दिमाग में दोनों बातें हैं जो अलग तो नहीं है, पर एक ही डाली, एक ही जिसको डाली के दो शाखाएं हैं, मैं एक कहूँगा, दोनों एक ही हैं। कि रंगमंच से फिल्मों या टेलीविजन में जा करके, फिल्मों में, वेब सीरीज में जाने से कोई गलत बात नहीं है उसमें। वो अच्छी बात भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। अभिनेता जब आता है तो अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब वो एक तरफा अभिव्यक्ति नहीं है, वो स्वीकृति भी चाहता है, वो अंदर की कोई तलाश भी है। लेकिन अभिनय एक साधना भी है। तो कई लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीज टू बी एक्टर। कई लोग फिल्मों में गए, काम भी मिला उनको, अभी भी मिल रहा है। टेलीविजन सीरीज में गए, काम भी मिल रहा है। वेब सीरीज में वहाँ भी काम मिल रहा है। पर इसमें ज्यादातर लोग एक्टर नहीं रह जाते। ये मुझे थोड़ा सी बात समझती है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन थिएटर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कैरियर यू आर। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। तो जैसा सर ने कहा कि एक्टिंग एक साधना है, और जिस तरह नज़ीर साहब ने भी बोला था, एक्टिंग इज एक्टिंग, चाहे आप उसको किसी भी जगह करें, चाहे वो आप कैमरे के आगे करें, स्टेज पर करें। तो ये ज़रूरी है कि आप एक्टिंग करें, सीखें, और इस कला को सीख कर आगे पेश करें। और इसके बारे में ना सोचें आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उम्मीद है फाजिल को भी अपना जवाब मिल गया होगा। उनका भी कुछ सवाल ऐसा ही था कि क्या थिएटर किया जाना चाहिए कि नहीं, जबकि उसमें यूजुअली रेवेन्यू शुरू में नहीं मिलता है। सर, अगला एक सवाल और आया है यश से कि जब आप सिनेमा की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो एक अलग दुनिया है जहाँ पे सिर्फ एक्टिंग नहीं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या वहाँ पे आप डेस्टिनी को ज़्यादा मानेंगे इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क? In the marathon of being a star, what weighs more, destiny or hard work? देखिए, डेस्टिनी तो थिएटर में भी चाहिए, यहाँ भी डेस्टिनी के काम नहीं, लेकिन
यह है कि फिल्मों का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। ये आसान नहीं है कि आप वहाँ जाएं और रातों रात स्टार बन जाए, लेकिन फिर भी लोग बन रहे हैं। डेस्टिनी भी होता है, पर सिर्फ डेस्टिनी नहीं होती है, उनकी मेहनत भी होती है, लगन भी होता है। और जो डायरेक्टर है या जो फिल्म मेकर है या जो क्रिएटर है, उसका अपना विजन क्या है। तो ये जो है ना, एक सामूहिक विजन है जिसमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की अपना विजन भी होता है। और इसमें बेसिकली एक स्टार सिस्टम तो है ही फिल्मों में, पूरी दुनिया में है स्टार सिस्टम। इसलिए कई बार वो जो लोग फिल्मों में जाते हैं वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं, लौट के फिर नाटक में चले जाते हैं। तो इसके बारे में कोई एक बंधा बंधाया नियम नहीं है या बंधा बंधा तरीका नहीं है कि आप कहें कि बस आप जाएं फिल्मों में और ये करें तो सफल हो जाएंगे, फला ना करें तो सफल हो जाएंगे। हो सकता है इसमें आपके भाग्य की भी बड़ी भूमिका हो, आपकी मेहनत की भी भूमिका होगी, और आप कैसे एंट्री मारते हैं। वाई अमिताभ बच्चन रसूदीन शाह बिकेम स्टार, ये भी समझने की जरूरत होती है। क्या उनका तरीका था, क्या किस शैली में वो गए, अभी भी किस शैली में लोग जा रहे हैं, और भी उसके बाद आ गए मनोज वाजपेयी हो गए, कैसे गए, क्या प्रिपरेशन था उनका, जिससे संबंध थे। क्योंकि बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं है, प्रतिभा की नहीं है, आपके रिलेशन कैसे आप अपनी प्रतिभा को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, ये भी है। आजकल तो कई जगह एजेंट हैं जो एजेंट से आपको काम दिलवाते हैं, या और ये हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो ये सब प्रक्रियाएं जटिल हैं। वो हॉलीवुड नाम का एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, आप लोगों ने देखा है किसी ने? सर आप किस लोगों ने? नाम से? हाँ, हॉलीवुड नाम से सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री है, कई भागों में है। आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप में से किन लोगों ने हॉलीवुड देखा नाम हो। का है एक वेब सीरीज, वेब डॉक्यूमेंट्री है, सीरीज में आ रही, कई श्रृंखलाओं में है। सर कुछ लोगों का आया है जी सर। हाँ, तो आप उसने शुरू में देखा होगा कि वहाँ हॉलीवुड में जो थिएटर स्टूडियो होता है वहाँ हजारों लोग भीड़ लगा के तैयार रहते हैं कि मुझे एक रोल में ले लिया जाए। उसमें एक दो लोग होते हैं जो चले जाते हैं, कुछ लोग गेट पर ही रह जाते हैं हमेशा। मैं नहीं देखा हो, देख लीजिए, लेकिन उससे आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हॉलीवुड या फिल्मों में क्या सिस्टम है एंट्री। एक्स्ट्रा बनने के लिए लोग लाइन में लगा के खड़े रहते हैं कई दिनों तक, सुबह से ही चले जाते हैं अगर। तो ये सब भी फिल्मी दुनिया में भी वो भी है। एवरी एक्टर शुड सी दिस, इसलिए नहीं कि एक्टिंग की चीज है, ये समझने के लिए कि बॉलीवुड हॉलीवुड में प्रवेश कैसे मिलता है और क्या तरीका होता है। तो ये भी एक तरीका है। तो मैंने कहा कोई नुस्खा नहीं है, नुस्खा तो हमेशा मेहनत और आपकी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ at every stage, not in even in theater, but in cinema also, in life also, in politics also, in bureaucracy also. How you strategize your next step, that is very important. Yes. सर बहुत खूब बात की आपने, क्योंकि जो सिस्टम है वो हर फील्ड का अपना है, और अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं तो आपको ही उसका रास्ता तलाशना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपकी कोई भी जो भी करियर है, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ, चाहे वो 0.1% डेस्टिनी क्यों ना हो, लेकिन 99.9% आपका हार्ड वर्क होगा। तो आप अपने हार्ड वर्क पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसे जाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप वहाँ पे कितना समय रहते हैं और कैसे रहते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। सवालों और जवाबों का सिलसिला मुझे लगता है अब यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाँ, सवालों का उत्तर दिया जा चुका है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो तो चुका है। हाँ जी, तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर संदीप रावत टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। सर, आपका डिजिटल स्टेज पे स्वागत है। थैंक यू सो मच अंकित। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये जो कोशिश थी हम लोगों की कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ हम सब लोग उन लोगों को सुन पाए और उनका अनुभव सुन पाए और वो क्या सोचते हैं एक विषय के बारे में। और मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला, और हम सबको मैं कहूँगा बहुत सारी बातें एक की टेक अवेज हो सकता है हम लोगों के लिए, हो सकता है किसी के लिए अलग की टेक अवेज हो। एक बात की तरफ ध्यान लगाना चाहूंगा जो सर ने कहा कि, और जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शायद
फिलहाल मुझे लगता है कि इसके बारे में बात हो रही है। स्टानिस्लॉवस्की साहब का एक कोट है दैट लाउडनेस इज लाउडनेस, इट्स नॉट एक्टिंग। ये बात आज से 80-90 साल पहले वो कह चुके हैं। तो शायद ये अवधारणाएं तब भी थी, अब भी थी। सर ने बहुत मुखर होके अपनी बात रखी कि नहीं, किस तरह का अगर थिएटर हमारे गले को या हमारी आवाज को शायद प्रभावित कर सकता है। तो बस मैं कहूँगा सारा खेल चुनाव का है कि आप क्या चुनाव लेते हैं, लेकिन मेक श्योर एज थिएटर स्टूडेंट, मेक श्योर कि आप अपनी आवाज का ध्यान रखें, बिकॉज द वर्ड शुड डेवलप नेचुरली, ठीक है। और अगर वो खराब तरह से डेवलप हो जाती है तो वो किसी भी अभिनेता को परेशान कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसपे आमतौर पर बचा जाता है बोलने के लिए। साथ में इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जो लर्निंग होती है वो एक होलिस्टिक, मैं मानता हूँ कि जो थिएटर ट्रेनिंग है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। सिर्फ नाटकों का मंचन, 1 नाटक, 2 नाटक, 50 नाटक, 100 नाटक, सिर्फ नाटकों का मंचन हो सकता है कि आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह के सेमिनार, अब चूंकि हम लोग ऑनलाइन मोड पे, तो हम इसको वेबिनार कह रहे हैं, हम लोग आमतौर पर करते रहते हैं जिसमें कई लोग आए और हम उनका अनुभव सुने। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में ये सब चीजें शामिल है। शायद सुबह उठकर आपका न्यूज़पेपर पढ़ना भी शामिल है। जैसे किसी ने सवाल पूछा ट्रेनिंग में कि देश में क्या चल रहा है, आपके लिए जानना जरूरी कि देश में चल क्या रहा है। किताबें पढ़ना जरूरी है, सब जरूरी है। एक अभिनेता की ट्रेनिंग में कुछ मुझे लगता है कुछ बेकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब अभिनेता को तैयार कर रहा है। और ट्रेनिंग मल्टी लेयर होनी चाहिए, वो सिर्फ नाटकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो इस तरह के वेबिनार्स, इस तरह की बातचीत या अलग अलग टेक्निक्स पर बातचीत, सब चीजों के बारे में होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है सर ने बहुत बखूब, बहुत सारी, मुझे लगता है बहुत सारे की टेकअवे मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मिले। सर ने बहुत सारी स्टानिस्लॉवस्की साहब का जिक्र किया, बाहर के कल्चर का जिक्र किया कि हमारा कल्चर शायद अलग है, हम शायद थिएटर को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग का एक यूनिवर्सल पैटर्न जरूर है जो शायद हर जगह फॉलो किया जाता है। उसके अंदर हर देश में उसके संस्कृति के हिसाब से बदलाव आ जाता है, लेकिन ट्रेनिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता। इसी के साथ इस उम्मीद में कि आप लोगों को मजा आया, मैं कुछ वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा। सबसे पहले रविंद्र सर, थैंक यू सो मच। समर्थ थिएटर परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। आगे बढ़ते हैं। इस वेबिनार में एक टीम थी जो लगातार आप लोगों के साथ संपर्क कर रही थी, इस पूरे वेबिनार को मैनेज करने में लगातार मदद कर रही थी। उन लोगों को मैं इस डिजिटल मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि अरुण कुमार सिंह मंच पर आ जाए। अरुण इस डिजिटल मंच पर आ जाए। अरुण, ध्रुवी, अंकित, जिसको आप काफी देर से सुन रहे थे, एक एक करके लोग मंच पर आना शुरू हो चुके हैं इस डिजिटल मंच पर। एंड स्पीति, स्पीति आप खुद को भी ला सकते हो मंच पर, स्पीति भी मंच पर आ जाए। ये लोग शायद कंप्यूटर के पीछे इस वक्त बैठे हैं, लेकिन लगातार एक्टिवली इस वेबिनार को कोशिश करें कि वो जीवंत रहे, वो वैसा लगे कि हम शायद एक क्लासरूम में बैठे हैं और रविंद्र सर को सुन रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम लोग ऑनलाइन हैं तो उसकी संभावनाएं हैं, जैसे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, कुछ ग्लिच आया, मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें जो शायद किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन समवेयर अराउंड मुझे लगता है कि शायद हम लोग मैनेज कर लिया थोड़ा इंटरनेट की शरारत के बावजूद। सो शामिल हुए सभी लोगों को मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समर्थ में हम लोग जिन मूल्यों पर काम करते हैं, जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसको अब हम बाकी लोगों को भी जोड़ सके इस तरह के वेबिनार से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेमिनार से, क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा जोक पढ़ा था कि आई प्रेफर सेमिनार, बिकॉज सेमिनार के अंत में एक चाय और समोसा मिल जाता था, वेबिनार में वो मुमकिन नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग जल्द सेमिनार में आए, समर्थ के ब्लैक बॉक्स में हम लोग बैठे, एक स्पॉटलाइट हो जिसमें रविंद्र सर बैठे हो और हम सब जमीन में बैठकर, कारपेट में बैठकर उनको सुन रहे हो, इस माहौल में हम फिर से वापस आए। तब तक के लिए सर ने बहुत मुखर होके, बिलीव मी, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इस वक्त डिजिटल माध्यमों की, थिएटर में तो बहुत बुराई भी चल रही है, लेकिन सर जैसे सीनियर लोग जब इस तरह में मुखर होकर आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ रंग समीक्षक नहीं रह जाते, वो एक मेंटोर हो जाते हैं, कि शायद वो नए रास्ते दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शायद हमें हमारे सीनियर्स का ऐसा सानिध्य चाहिए होता है जो
शायद इतना बोल दे कि हाँ कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, मेहनत करो। मेहनत हम सबके ऊपर है, जैसा सर ने बोला कि हम सबके ऊपर मेहनत है। और अब ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं अपनी वाणी को शांत देता हूँ, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आज, जितने लोग, क्योंकि आप में से सभी लोग थिएटर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, थिएटर कर रहे हैं। एक बात और सर के वक्तव्य में आई थी, देखिए एक्टर अगर ब्रेक पे चला जाएगा, तो उसका सारा पिछला ट्रेनिंग बेकार हो जाएगा। तो अभिनेता के तौर पर कभी अपने आप को ब्रेक पे मत डालिए, काम करते रहिए, ठीक है। आपका ट्रेनिंग नहीं रुकना चाहिए, भले ही आप काम कर रहे हो। काम से मेरा मतलब है चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग को कभी मत रोकिए, ट्रेनिंग लगातार जारी रखिए, खुद से ढूंढिए, किताबें पढ़िए, लेकिन ट्रेनिंग जारी रखिए, ठीक है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। मैं अपनी वाणी को शांत करके चाहूंगा अंकित इसका समापन करें और आज का डे 1 यही फिनिश करें। अंकित, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक बार मैं फिर रविंद्र सर को बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू टू यू आल्सो। आपके व्यूज एक्सपीरियंसेस काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। सो हेयर्स द टाइम टू रैप द डे 1। विल बी हेयर टुमारो विद अनदर गेस्ट, मिस्टर पवन के श्रीवास्तव. He's a filmmaker, writer, blogger and an activist. So future updates के लिए आप प्लीज हमारे फेसबुक हैंडल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। एंड थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट, होप टू सी यू लेटर, बाय बाय। रविंद्र सर, थोड़ी देर के लिए अगर आप कैमरा ऑन कर सके तो हम एक फोटो क्लिक कर लें, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। रविंद्र सर हैं मीटिंग में, स्पीटी चेक करो अगर रविंद्र सर हैं तो। आई थिंक शायद सर ने लीव कर दिया, शायद। शायद सर नहीं है, yes. ओके, हम लोग रैप कर सकते हैं। I would like to request Arun to please end the meeting for all.